Hello everyone. Today we are going to talk about our new topic called as differential equation. In engineering, wherever there is a heat transfer, mass transfer, aerodynamics, all those things will include a high degree of utilization of differential equations. जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में एरोडायनेमिक एरोस्पेस में जाएंगे chemical engineers, those will be finding a huge use of this differential equation. Although we will be discussing or learning very small part of it right now. अभी हम लोग बड़े बेसिक लेवल की बात करेंगे. बट डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस में दो एप्लीकेशंस हम लोग जो भी देखते हैं अपने कोर्स में वो हैं एरिया अंडर द कर्व जो हम लोग बात कर चुके हैं, और दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. We are going to talk about the different types of differential equation we have in our course and how to solve them and what that means. So we are going to talk about that thing. Okay. So let's start with and let's move to the whiteboard. So what is differential equation that we have to see? Okay. So differential equation, the definition of differential equation will be an equation that involves independent and dependent variables and the derivatives of the dependent variable is called as differential equation. Any equation, ऐसी कोई भी equation जिसमें dependent variable which is x, independent variable which is y और y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, मतलब an equation of the form containing x, y, different orders of derivative of y with respect to x and so on is equals to 0. This form of differential equation, this form of equation is called as differential equation. Okay, if I say x dy by dx plus y d2y by dx2 plus d3y by dx3 equals 0. This is another differential equation. X square plus y dy by dx is equals to 1 minus d2y by dx2 का whole cube. dy by dx is equals to x upon under root of x square plus y square. dy by dx plus 10x into y is equals to cos x. All of them are the examples of what? Of differential equation. अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे x है, y, x और y के फंक्शन है और साथ में डेरिवेटिव्स हैं. ठीक है, तो दिस इज what the differential equation will look like. Okay. Now the differential equations के कौन कौन से प्रकार होते हैं, what are different types of differential equation and what are the terminologies related to it, so that we have to understand. Okay, so let's move to that part. A differential equation is said to be ordinary differential equation if differential coefficients have a reference to a single independent variable only, and it is said to be partial if there are two or more independent variables. We will be concerned with the ordinary differential equations only. जब डिफरेंशियल, जैसे अभी मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी थी उसमें डेरिवेटिव जो था दैट वाज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. Okay, there was no mention of any other variable. They were only by y and x. So those sort of equations, all of them were ordinary differential equations. But what happens is when there are more than one independent variables, then those differential equations are called as partial differential equation. लेकिन हम लोग के कोर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी नहीं है, ये आप इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तब आप पढ़ेंगे. ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी पड़ेगी. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसको जब सॉल्व, जो फाइंडिंग दैट अननोन फंक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव.
because differential equation can be regarded as a relation derived from it. Okay, geometrically अगर हम बात करें तो any differential equation represents a family of curve. Okay, it is called as another way of representing a family of curve. If I can talk कि मैं आपको बताऊं कि जैसे SHM फॉर एग्जांपल SHM की बात करें तो SHM में आपको याद होगा कि डिफरेंशियल द जनरल इक्वेशन ऑफ एन SHM वाज d2y by dx2 is equals to ky. वो क्या था? दैट वाज आल्सो एन SHM, बट SHM की एक इक्वेशन और हम बोलते हैं y is equals to a sin omega t plus phi. सो a sin omega t plus phi में a omega phi ये सब वेरिएबल्स है और d2y dx2 is equals to ky में हमने वो वेरिएबल्स गायब कर दिए. तो जब मैं कोई फैमिली ऑफ कर्व की बात करता हूं तो उस फैमिली ऑफ कर्व में होता क्या है? उस फैमिली ऑफ कर्व में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यूज के लिए उस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स आते हैं. ओके, जैसे आप याद करिए स्ट्रेट लाइन पे आपने बात करी होगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0. तो ये फैमिली ऑफ लाइन थी यहाँ पे लैम्डा की हर वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व आ रहे थे. लैम्डा इज द कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेंबर, बट फॉर अदर थिंग्स इट विल डू व्हाट, बाकी सब के लिए वो बेसिकली हर मेंबर के लिए वो कांस्टेंट है लेकिन इन जनरल वो वेरिएबल है. तो ऐसे कांस्टेंट्स को कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 में एक ही दिख रहा है, कई इक्वेशंस में और भी ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके अगर हम एक कंडीशंस को लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल तो दैट विल बिकम द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ज्योमेट्रिकली एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व. ओके, ये बात सबको क्लियर है? अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासीफाई, अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे. ठीक है, कि भाई ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है. अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना तरीका है, तो लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का अपना तरीका है तो उनको कुछ पता भी तो चलना चाहिए ना कि दिस इज दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दिस इज दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट थिंग. ओके, तो इस क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं. वो दो पैरामीटर्स का नाम होता है डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. So what do we actually mean by degree and the order of the differential equation? So again, let's get back to the whiteboard. You can see over here the order or degree of differential equation. The order of the differential equation is the order of the highest order differential coefficient occurring in it. जो highest order का derivative वहाँ पे available होगा, ठीक है, that will be called as what? Order of the differential equation. Okay, जैसे for example अगर देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ ये लिखा हुआ है. ठीक है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है. अब बताइए कि इस पहले वाले पार्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले वो कौन सा है? ये. इसका ऑर्डर कितना है? 2. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? 1. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये देखो, ये रहा ये वाला. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये देखो, ये 1. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? देखो अगेन दैट इज 1. ठीक है, तो ऑर्डर निकालना यहाँ पे आसान हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, लेट से थोड़ा सा जो हमने याद है इसको स्टार्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी थी, ये देखिए. अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला ये है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया? 3. यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया? 2. यहाँ पे ऑर्डर 1, यहाँ ऑर्डर 1. तो जितने भी ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव अवेलेबल है आपको उसका ऑर्डर देख के बताना है और दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया? Now let's get back to the second thing that is called as degree of the differential equation. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पहले एक बार ये जो लैंग्वेज लिखी है वो पढ़ लीजिए. ऑल दो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, समझाना पड़ता ही है. ठीक है, तो what it is, a degree of differential equation which is expressed or can be expressed as a polynomial in the derivative is the degree of the highest order derivative occurring in it after it has been expressed in a form free from radicals and the fraction as far as the derivatives are concerned. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखता हूँ, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है,
वो उनके ऊपर कोई लॉग साइन वगैरह के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। उनसे हटा के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो अलग एक टर्म्स के फॉर्म में होंगे, उनकी कोई पावर होगी, ठीक है। जब आप उस फॉर्म में आप उसे ले रख पाओगे तो हाईएस्ट ऑर्डर, और जितने भी डेरिवेटिव्स उनमें किसी की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, उनमें से किसी की पावर नेगेटिव नहीं होती, ऑल ऑफ देम शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। सारे डेरिवेटिव्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए, और पोलिनोमियल में जैसा होता है वैसा होना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है ना कि ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के दिया है वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी में एमथ ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर पी फिर फाइव ऑफ एक्स वाई ऐसे करके, तो ये देखो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और किसी पे भी नहीं फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर नहीं है, कोई भी लॉग साइन कॉस टेन इन सब के अंदर नहीं है, ठीक है। जब मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं तब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री। द ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी कॉल्ड एज डिग्री। अच्छा इसमें ध्यान देना, कई लोग बोलेगा सर जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी और डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री भी है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की पावर टू और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर फाइव है, तो ऑड से डिग्री क्या होगी, डिग्री फाइव होगी। नहीं, डिग्री फाइव नहीं होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, थ्री, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज थ्री, ठीक है। तो उसकी पावर क्या, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट, दैट इज टू, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव अ डिग्री ऑफ टू। But if you cannot represent the differential equation in the desired form, then the degree will not be defined. Order will always be defined, but the degree will only be defined if it can present it in the polynomial form. If you are unable to do that, you cannot define the order of define the degree of the differential equation. Okay, let's see. अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये नीचे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये अभी पावर फ्रैक्शनल है, तो यहाँ पे हम अभी डिग्री नहीं बता सकते। तो डिग्री बताने के लिए ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में क्या लिखा था, इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बिकॉज इट कैन बी रिटन एज डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल रेज टू पावर फोर, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू पावर सिक्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ, ये, इसकी पावर कौन है, फोर, देयरफॉर डिग्री जो आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, फोर आएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो तो इसको हम लोग डी वाई डी एक्स को वाई डैश अगर बोलूँ तो ये वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स वाई डैश इक्वल्स टू वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ पे वाई डैश दो बार आ रहा है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, टू, तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, टू। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, वाई, क्योंकि देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ई की पावर में है, अगर मैं उसे वाई ट्रिपल डैश लॉग ले लूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई। अब यहां से तो मैंने ई हटा दिया लेकिन यहां पे आ गया, तो मैं चाह के भी सारे डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो इस कारण से द डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। ओके, यहाँ पे साइन इनवर्स और डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करके डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, वन, उसकी पावर है वन, और ये इट्स फ्री फ्रॉम ऑल रेडिकल साइंस एंड ऑल, देयरफॉर द डिग्री विल बी वन। सेम इज द लॉजिक ओवर हियर, द डिग्री इज ऑल्सो वन। ओके, समझ में आइए। देखिए अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से ये अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चंस लिखे थे इसमें बात करें, बताइए यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, व्हाट द डिग्री विल बी हियर। यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, यहाँ पे डिग्री क्या आएगी, यहाँ पे डिग्री क्या आएगी। अब आराम से देख सकते हैं कि यहाँ डिग्री क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, वन, तो डिग्री विल बी वन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और जब ऊपर क्यूब को ओपन करूंगा तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या आएगी, थ्री, तो डिग्री विल बी थ्री। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन, यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन। तो इस तरह से आपकी ये डिग्री यहाँ पे डिफाइन होती है। ठीक है, तो समझ में आया डिग्री और ऑर्डर क्या होगा।